شہر نامے کا باقاعدہ آپ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ دی بینک آف پنجاب گھر کے خریداروں کے لیے آسان شرائط کے حوالے سے قرض کی صورت میں مالی معاونت فراہم کرنے کو تیار ہے۔ پنجاب بینک کے صدر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ دی بینک آف پنجاب گھروں کی خریداری کے لیے آسان شرائط پر قرض کی صورت میں مالی معاونت فراہم کرنے کو تیار ہے، جس میں دی بینک آف پنجاب گارڈن اسکوائر ڈیولپرز سے اس منصوبے کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کرتا رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ مستقبل میں اس طرز کے منصوبوں کے لیے کامیاب مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر دی بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کا کہنا تھا کہ یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے جس کے ذریعے دی بینک آف پنجاب وزیر اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے عملی کوششیں کر رہا ہے۔ اس منصوبے میں نجی شعبے کے سب سے پہلے کم لاگت ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز ایمن آباد اور گجراوالا میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 400 گھر جبکہ دوسرے مرحلے میں 600 گھر مکمل کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر گارڈن اسکوائر ڈیولپرز وسیم خان نے اس منصوبے میں تعاون پر پی او بی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور واسع انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث لطیف آباد نمبر 12 میں واقع جناح کالونی کینٹ 4 کے مکین سیوریج ملا بدبودار پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کریں حیدرآباد سے اظہر رضوی۔ واسع حیدرآباد کی مجرمانہ غفلت کے باعث لطیف آباد نمبر 12 کے علاقے کینٹ 4 میں پینے کے پانی کی لائن میں سیوریج کے پانی کی آمیزش کے باعث علاقہ مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے واسع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرین نے واسع انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2 سال ہو گئے جناح کالونی میں پانی اور بہت جگہ علاقوں میں، یہاں ہمارے علاقے کچی آبادی کے گندا پانی آ رہا ہے۔ 2 سال سے ہم لوگ باہر سے پانی بھر بھر کے لا رہے ہیں اور بچے بیمار ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے۔ 12 نمبر کینٹ 4 سے ہوں۔ یہاں پر تقریباً پچھلے 6 سے 7 مہینے سے کالا پانی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مہلک بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہیپاٹائٹس سی، بی، ای، یہ ساری بیماریاں اور جلد کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم حکام والا سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پانی صاف مہیا کیا جائے۔ لوگ پریشان ہیں یہاں پر۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کو غسل دینے کے لیے تک کے لیے پانی نہیں ہوتا۔ 1:30 بجے پانی آئے گا، جب کھولو یہی پانی آتا پینے کا۔ یہ جنید صاحب جو ہیں ایکشن پانی پی کے دکھائیں، وہ تو پھر جانا یہ کون پیتا ہے پانی، کس کے لیے پانی، یہ خود پی کے دکھائیں۔ یہ جانور بھی نہیں پیے گا پانی۔ مظاہرین نے ڈی جی ایچ ڈی اے غلام محمد قائم خانی سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کینٹ 4 میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ کیمرامین فرمان قریشی کے ساتھ اظہر رضوی، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ اور ملک بھر کی طرح سبی میں بھی پشتو زبان کو قومی زبان قرار دینے کے لیے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے ملک بھر کی طرح سبی میں بھی پشتو زبان کو قومی سطح پر اجاگر اور قومی زبان بنانے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتو زبان کو قومی زبان قرار دے کر تمام اداروں میں رائج کیا جائے۔ اور محکمہ کھیل جھنگ کی جانب سے ہاکی اسٹیڈیم سیٹلائٹ ٹاؤن میں موسم بہار شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر محمد عمران نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے وی این ہر بشر 2 شجر کے سلسلہ میں محکمہ سپورٹس آفس اور ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ہاکی اسٹیڈیم سیٹلائٹ ٹاؤن میں باقاعدہ طور پر موسم بہار شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عمران نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا اور شجر کاری مہم کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرائی۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عمران کا کہنا تھا کہ وہ حکومتی ویژن کے مطابق اس مہم کے دوران مختلف اسٹیڈیم اور گراؤنڈوں میں بھرپور شجر کاری کریں گے، کیونکہ جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنی ہی آلودگی میں کمی واقع ہوگی۔ 2021 کی شجر کاری مہم کا آغاز سلہ ٹاؤن جھنگ میں واقع وجہ شہید گراؤنڈ کے آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم سے کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی سپورٹ ڈپارٹمنٹ جھنگ کے زیر انتظام ہم اپنے جتنے بھی کمپلیکسز اور گراؤنڈز ہیں ان میں تقریباً 31 مارچ تک 500 کے قریب پودا جات جو ہے وہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کا قومی فریضہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ان کی حفاظت کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین شاہد وینس کے ساتھ ریاض سمیڈنگا، میٹرو ون نیوز، جنگ۔
اور خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ آج کے دن مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مختلف شہروں کی طرح گوجرا میں بھی پنجابی زبان کو رائج کرنے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ معروف ادبی شخصیات نے اس ریلی میں شرکت کی۔ اپنی ماں نال بڑا ہی پیار کردے ہاں تے پھر ماں بولی نال پیار کیوں نہیں کردے؟ سونیو سجنوں متروں تے بیلیو، گوجرے دے لوکاں دا یہ کہنا ہے اساں ماں بولی وچ گل کرنی ہے تے ماں بولی پڑھدیاں رہنا ہے۔ اسی اس ریلی دی قیادت بشیر ربانی، عوامی جسٹس پارٹی دے مرکزی سیکرٹری جنرل رانا سعید راشد منج تے پروفیسر تجمل حسین نے تے دیگر پروفیسراں، ادیباں، شاعراں نے بڑی تعداد وچ شرکت کیتی۔ گوجرا دے رہن والے لوکاں نے بھی اج دا دن بڑے ہی شوق تے جوش نال منایا۔ ریلی وچ آن والے لوکاں نے اپنے ہتھاں وچ چارٹ تے بینر پھڑے ہوئے سن جنہاں تے ماں بولی پنجابی نوں سکولاں دے وچ رائج کرو دے نعرے درج سن۔ لوکاں دا کہن سی کہ دوسرے صوبیاں دے طرح پنجاب وچ بھی پرائمری سکولاں دے نصاب وچ پنجابی نوں لازمی پڑھایا جائے۔ ریلی دے شریک لوکاں نے اپنے اپنے وچار بھی دسے۔ ماں میری دی بولیے اج آوے تیتھوں سنگ، چیتر جے بلی چاڑ لے اسی اوپرے اوپرے رنگ، نی ماں میری دی بولیے تک نج سمے دا کہر، انج باہو بلا پوج دے پر بولی دے نال ویر۔ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੁੱਟਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੜੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਪੜਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद और यहाँ पर आपको खबर देंगे मेलसी से, जहाँ पर माही बलोच गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने लाखों रुपए मालियत के दरख्त कटवा दिए। तलबा और तालिबात दरख्तों के साए से महरूम हो गए हैं। मेलसी नवाही इलाके में माही बलोच के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहाँ दोनों स्कूलों में तलबा और तालिबात को मखलूत तालीम दी जा रही थी और दोनों स्कूलों की एक ही हेड मिस्ट्रेस हैं। उन्होंने एक हफ्ते कबल दोनों स्कूलों में साया से साया ही हटा दिया। हेड मिस्ट्रेस ने लाखों रुपए मालियत के सरकारी सरसब्ज दरख्त एक स्कूल से जड़ों समेत और दूसरे स्कूल से जमीन के बराबर कटवाकर सिर्फ हुकूमत पंजाब के ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम की धज्जियां ही नहीं उड़ाई, बल्कि कमसुन बच्चों को दरख्तों के साए से महरूम भी कर दिया है। काटे गए दरख्तों के निशान अभी तक मौजूद हैं, जिसकी इत्तला डिप्टी एजुकेशन को दी गई है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशन ने कहा कि मैंने कमेटी बना दी है जो जल्द ही इसकी रिपोर्ट बनाकर देगी। और जिला सोबतपुर की तहसील माचमी में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नोटिस मिलने के बाद वहां पर शहरियों ने अपने घर और दुकानें गिराना शुरू कर दिए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद मेट्रो 1 के नुमाइंदे गुलाम नबी जमाली से। गुलाम नबी जमाली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सोबतपुर की तहसील मांझीपुर में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो है नोटिफिकेशन जो नोटिस दिया गया कि वो तजावुज़ के ख़िलाफ़ कि वो अपने घरों मकानों को और दुकानों को जो है तजावुज़ हटाए जाएँ। तो इस हवाले से यहाँ पर लोग जो है अपनी मदद आपके तहत अपने घर और दुकानों की छतें और मुकम्मल मिसमार किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट जो ये हमारे जगह है गरीबों की मिसमार किए, मेरा ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, जो ये सारे गरीब हैं, मिस्कीन हैं, इसको जगह दें।
इसके साथ तावन करें, इसको मरम्मत के लिए इसको जगह दें, ये अपना को घर बनाए या को दुकान बनाए। ये हमारा जो इलाका है मांझीपुर का गरीब इलाका है, इसमें ज्यादा पैसे वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, देखो कितने कितने सारे दुकानें हैं, मिस्किन है। मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट से हमारा अपील है, हमारे शहरियों की अपील है, तो इसको जगह दें, को दुकान बनाए, को अपने बच्चों के लिए, के बच्चे सारे रोड पर पड़े हैं ये सर्दी में गर्मी में। सुप्रीम कोर्ट से ये हमारा गुजारिश है, बराए मेहरबानी करके इसको जगह दें, को दुकान बनाए, को अपने घर बनाए। हमारा यही मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट से। वजीर आजम से भी मुतालबा है तो हमारे शहरियों की मदद करे, जो भी हमारे पाकिस्तानी है सारे मदद करे। सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है, नायब को भी अपील है, वजीर आजम को भी अपील है, वजीर आला को भी, ये जो भी दुकान वाले इसको जगह दें, ये अपने दुकान बनाए, बराए मेहरबानी। जी, इस शहरी का कहना था कि यहाँ पर गरीब लोग जो है अपने रोडों पर बैठे हुए हैं और घर मिसमार कर दिए गए हैं। खुदारा उनकी अब मदद की जाए। सुप्रीम कोर्ट को जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है अहकाम जारी करे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो गरीबों की मदद के जितना हो सकता है उनके साथ ताउन करे। जी बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी जमाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। विहाड़ी पुलिस का जराइम पेशा के खिलाफ क्रैक डाउन, मुख्तलिफ गैंग के 22 मेंबरान समेत 53 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ऑफिसर विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। इसी सिलसिले में जिले विहाड़ी के मुख्तलिफ थाने में 6 गैंग के 53 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इलाके से जराइम के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान नारा लगाती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब अगर रायवन शहर की बात की जाए तो सड़कों पर और गलियों पर गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। रायवन शहर में सफाई सुथराई के हवाले से अगर बात की जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान रायवन शहर में पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रायवन शहर की गलियां और सड़कों पर जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। अहले इलाका और ताजिरों ने मुतादिद बार इसी हवाले से इवेंट के अफसरान को शिकायत दर्ज करवाई हैं। इस गंदगी को सड़क से उठाया जाए, लेकिन सीईओ यूनिट के अफसरान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। दूसरी जानिब अगर असिस्टेंट कमिश्नर रायवन की बात की जाए तो वो भी अपनी कुर्सी तक ही महदूद है। सफाई सुथराई के इंतजामात को देखने के लिए कभी रायवन शहर का रुख ही नहीं किया। और डेरा गाजी खान की बात करें तो वहां पर दरिया सिंध का कटाव जारी है। इस कटाव से मुकामी आबादियों को शदीद खतरात लाहक हैं। डेरा गाजी खान में दरिया सिंध का कटाव जारी है। इस कटाव से मुकामी आबादियों को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि हमारे प्यारों की बाकियात हमारे सामने बहा कर ले जा रहे हैं, हमने रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब से अपील की है कि जल्द अज जल्द एहतियाती तदाबीर का काम शुरू किया जाए ताकि इस दरिया सिंध के कटाव से मुकामी आबादियों को बचाया जा सके। और अब खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। गुजरात में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। कत्ल होने वालों में 50 साला अख्तर, 55 साला एहसान, 50 साला परवीन बीबी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। और पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा है कि हम हुकूमत के गुनाहों में शामिल नहीं हैं। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं है। प्रेस क्लब लोधरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि लोधरा का एक सर्टिफाइड करप्ट सियासतदान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में रहा और अब तहरीक इंसाफ में है। स्टेटस को बनाने वाले स्टेटस को कैसे तोड़ सकते हैं? उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तब्दीली और एहतिसाब का नारा लगा कर वोट लिए, लेकिन अवामी उम्मीदें पूरी ना हुई। नवाज शरीफ को जाने की इजाजत हुकूमत ने दी है। 2.5 साल गुजरने के बावजूद एक शख्स को भी सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हम कभी भी तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी नहीं थे। हमने धरना सिर्फ अपनी FIR दर्ज कराने के लिए दिया। PTI ने अपने 4 हलकों को खुलवाने के लिए धरना दिया।
اور सराफा एसोसिएशन चौक आजम के 9 मुंतखब अहदेदारान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़राअत लाला ताहिर, मलिक रियाज और ज़िले सदर अंजुमन ताजरान ने हल्फ लिया। सराफा एसोसिएशन चौक आजम के 9 मुंतखब अहदेदारान ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। सराफा एसोसिएशन की तरफ से चौक आजम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। फूलों की माला पहनाकर ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने तकरीब को 4 चांद लगाए। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों की खाने से तवाज़ु भी की गई। 9 मुंतखब सदर मोहम्मद जाफर ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद और गर्दनवा में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म से महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पेट्रोल, डीजल, अदवायात, सब्जी, फल, फ्रूट, एशिया, खुर्दनोश और दीगर रोजमर्रा की खाने पीने की एशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने जहां सफेद पोश तबके के अमीरी के राज फाश कर दिए हैं, तो वहीं हारूनाबाद की अवाम भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई की वजह से जहनी मरीज बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों का खमियाजा आम तबका बर्दाश्त कर रहा है। एशिया जरूरियात की बढ़ती हुई कीमतों और खुद साख्ता महंगाई का बोझ साहब हैसियत के साथ आम शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं। यही वजह है कि खास तबका अमीरतर और आम शहरी गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिस पर शहरियों ने शदीद तफशीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से फौरी महंगाई को कंट्रोल करने और गरीब शहरियों को खुसूसी रिलीफ पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। और अब खबर शामिल करेंगे तौसा शरीफ से, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम फे का तहसील काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तहसील भर से ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास की सदारत कायम मुकाम अमीर सूबा पंजाब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना मोहम्मद इकबाल रशीद ने की और लॉन्ग मार्च में शिरकत के हवाले से ओहदेदारान और कारकुनान को हिदायत जारी की। तौसा शरीफ में जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहसील काउंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील भर के ओहदेदारान ने शिरकत की। मौलाना इकबाल रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च हुकूमत के लिए रेफरेंडम साबित होगा। आवाम इनसे तंग आ चुकी है, महंगाई उरूज पर है, गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। हमने पहले दिन से कहा था कि ये जाली हुकूमत है, हम ही आवाम की जान छुड़वाएंगे। अब वो दिन आ चुका है कि हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं, हुकूमत के हवाले से मुल्क को कर्जों में डुबो रहे हैं। मौलाना इकबाल रशीद का मजीद कहना था कि आज मैं जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कारकुनान के लिए पैगाम लेकर आया हूँ कि लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें और इस हुकूमत से आवाम की जान छुड़ाएं। और आरपीओ रावलपिंडी से पोठोहार प्रेस क्लब गोजर खान के वफ्द ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि मुलाकात में आरपीओ रावलपिंडी ने नौमंतखब सदर खान लियाकत को जमहूरी अंदाज में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। आरपीओ रावलपिंडी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस और सहाफ़त का चोली दामन का साथ है, सहाफ़ी जराइम की निशानदही करें, रावलपिंडी पुलिस जराइम को कंट्रोल करेगी। और इसके अलावा वफ्द में खान जरीन, सखाफत मुगल, अब्दुल सत्तार नियाजी, डॉक्टर वकार भट्ट, आसिफ महमूद अवान शामिल थे। और अब खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां पर अल्लामा हुसैन डोगर के वालिद की सालाना बरसी के मौके पर उनकी रूह के साल सवाब के लिए ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया। दुनियापुर के नवाही इलाकों में रिहायशी अल्लामा हुसैन डोगर के वालिद की सालाना बरसी के मौके पर उनकी रूह के साल सवाब के लिए ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया। और अब चिन्योट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि थाना सदर के नवाही इलाके में गैरत के नाम पर खाविंद ने अपनी बीवी अजरा बीबी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया है। आपको बताएं कि चिन्योट थाना सदर का नवाही इलाके में गैरत के नाम पर खाविंद ने अपनी बीवी जहरा बीबी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। और काहना गर्दनवा में दीगर मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। काहना काचो चौक में तजावुजात और गैर कानूनी स्टैंड से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है।
कान्हा के इलाका काचा चौक में ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है। नाजायज तजावीज़ात और गैर कानूनी रिक्शा स्टैंडों की वजह से ट्रैफिक हर तरफ जाम रहती है। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा। ट्रैफिक वार्डन्स की बात करें तो वो भी बर वक्त कार्रवाई करते नज़र नहीं आते। शहरियों को गुज़रगाह में शदीद मुश्किलात का सामना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लगता। यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हालात देख सकते हैं, ठीक, और हम सब बहुत परेशान हैं और ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ख़राब है। और शहरियों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि महकमाना गफलत की वजह से ये प्रॉब्लम्स का सामना है। लोग शदीद परेशान है, ट्रैफिक की रवानगी मुतासर है, कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन अजान अली शाह के साथ मियां काशिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कान्हा। और अब आपको खबर देंगे पिंडी भटिया से, जहां पर नूर मोहम्मद में मुस्तकबिल के सितारे सख्त सर्दी और धुंध में खुले आसमान तले बैठकर इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। इस अहम मसले पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरवर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी बटिया का ये गांव छन्नी नूर मोहम्मद है, जहां के बच्चे आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए और मुल्क कौम की खिदमत के जज्बे के तहत इल्म हासिल करने स्कूल तो आते हैं, मगर बदकिस्मती से इन बच्चों को पानी बिजली तो क्या स्कूल की छत भी मुयस्सर नहीं है। सख्त सर्दी और धुंध में खुले आसमान तले बैठकर इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। 1200 आबादी वाले इस गाँव का रहायशी तस्वीर अपनी मदद आप के तहत बच्चों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहा है। इसी गाँव के नाम पर 10 किलोमीटर दूर एक डेरे पर महकमा तालीम और बासर अफराद की मिली भगत से स्कूल बनाया गया है, जहां गांव के बच्चों का जाना नामुमकिन है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़कर उस्तानी लगना चाहती हूँ। मेरी इब्राहिम खान से गुजारिश है हमें स्कूल दिया जाए। मैं पढ़ना चाहता हूँ, हमारे पास स्कूल नहीं है, मैं पढ़कर फौज में जाना चाहता हूँ। किसी भी मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम और उस्ताद बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जब यही मुयस्सर ना हो तो मुल्क की तरक्की और महज़िब मुआशरा तश्कील नहीं दिया जा सकता। और अब खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां पर रिंद जादा रोड अरसे दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। आए रोज हादसात भी मामूल बन चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसैन खान रिंद इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हसैन खान, रिंद आगाह कीजिएगा कि क्या कहना है इलाके मकीनों का। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कहरोड़ पक्का के नवाही इलाका रेंद ज़्यादा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ का रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। आए रोज हादसात भी मामूल बन चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी, आप रोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ढेर सारा साथी गए रोड टूटा पे सारे जेड़े MN MP हैं सारी गाल नहीं सुनते, देरे दे वंजे ताले लगे पे असा मरीज घेंदे वेने करोड़ पक्का है, सारे मरीज रस्ते दम तोड़ वेंदे। अपील है वजीर आज़म वजीर आला से कि ये रोड मुकम्मल किया जाए और मुरम्मत की जाए। जी, मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं। जी, आप टूटे हुए रोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये रोड काफ़ी अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। जब से मैं पैदा हूँ मैं ये देख रहा हूँ, इसे कभी मुरम्मत भी नहीं किया गया। काफ़ी ये स्कूलों और अस्पताल को भी जोड़ता है। स्कूलों बच्चों को स्कूल जाने के लिए दुश्वारी होती है, वो रास्ते में गिर जाते हैं, उनके वालिदैन को बड़ी मुश्किल होती है। और जो मरीज़ हैं उनको हम जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। अगर वो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा भी दिया जाए तो वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में मुब्तला होते हैं। हमारी हुकूमत के हवालों से अपील है। जी बिल्कुल, शहरियों की जैसे कि आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि रोज हमारे जो है रोड खस्ता हाली का शिकार होता जा रहा है। हुकूमत जो है इस पे कोई लय अमल नहीं कर रही। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमारा रोड जो है मुरम्मत करवा के दिया जाए। जी हसन खान, आपने तफसीलात बताई, आपका शुक्रिया। और शेखुपुरा से आपको खबर देंगे, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज़ भी जारी रहीं। आपको बताएं कि शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत के मुताबिक शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज़ भी जारी रहीं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की ज़ेर निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन इनायत सिंधु और उनकी टीम ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए मेन बाजार और रीगल चौक से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी
डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर चोया का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान हुसदार की हिदायत के मुताबिक तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ पूरे शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। और कोडद्दू में मौसम बहार की आमद के साथ ही हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिलकश नज़ारे दे रहे हैं। गुलाब का फूल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इसके शोख रंग जज्बात के इजहार का मुअस्सिर जरिया है। जब गुलाब शायरी में आता है तो शोरा उसे मोहब्बत की डोरियों में परो के अपनी उल्फत का इजहार करते हैं। जब तबीब के हाथ आता है तो वो उसे कशीद करके इंसान के फ़ायदे के लिए दवाएं तैयार करता है। गुलाब अपनी खुश शक्ल और मनपसंद खुशबू की वजह से फूलों का बादशाह कहलाता है। इसकी काश्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से की जाती है। गुलाब की 100 से ज़ायद अक़साम हैं। हत्ता कि गुलाब का तस्वुर जहन में आते ही एक मशहूर कुन एहसास सरायत करने लगता है। मगर ये फूल कभी किसी के गले का हार बनते हैं तो कभी किसी की कलाई का कंगन, कभी किसी के बालों का जोड़ा और कभी गुलाब के फूल को पत्तियों की शक्ल इख्तियार करना पड़ती है। मौसम बहार के मौके पर गुलाब के